اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمان میڈیا ٹاک کر رہے ہیں۔ ناجائز اور جعلی ہیں۔ جو حکومت خود دھاندلی کی پیداوار ہو اس کی نگرانی میں بلدیاتی الیکشن کیسے قبول کیے جا سکتے؟ ہر چند کے الیکشن کمیشن یہ کہے کہ ہماری نگرانی میں ہے، لیکن ارباب اقتدار ہر صورت میں مؤثر ہوتے ہیں اور وہ اپنے زیر اثر انتظامیہ کو الیکشن میں اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور سرکاری وسائل کو استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر الیکشن کمیشن نے خود یہ کہا ہے کہ ہم ووٹر ویریفیکیشن کا ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اس بات کا اعتراف کر رہا ہے کہ ووٹر لسٹ مشکوک ہے، اسی لیے اس کو ویریفیکیشن کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ تو اس طرح مشکوک انتخابی فہرستوں کی بنیاد پر الیکشن کرانے کا کیا معنی؟ ایسی صورتحال میں عجیب ملغوبہ یہ ہے کہ ولیج کونسل وہ غیر جماعتی ہوں گے اور تحصیل الیکشن وہ جماعتی بنیاد پر ہوں گے۔ ایک ہی بلدیاتی نظام ہے، اس بلدیاتی نظام کے تحت ایک سطح جو ہے وہ غیر جماعتی ہے اور دوسری سطح جو ہے وہ جماعتی بنیادوں پر ہے۔ اور پھر یہ بھی کہ جو لوگ کامیاب ہو جائیں گے ولیج کونسل میں ان کو پھر اختیار ہوگا، وہ کسی بھی سیاسی پارٹی میں 24 گھنٹے کے اندر یا 48 گھنٹے کے اندر شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ بتائیں کہ جو بلدیاتی ممبران جس کا صرف کام اس محلے کی خدمت ہے اور اس محلے میں اس کو فنڈ چاہیے، حکومت پی ٹی آئی کی ہوگی، تو اس کا تو معنی یہ ہے کہ تمام ممبران کو وہ اس مجبوری کے تحت وہ پی ٹی آئی میں شامل کریں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھریں گے۔ تو اس لحاظ سے ہم اس بلدیاتی الیکشن کو تسلیم نہیں کرتے۔ اس سلسلے میں ہم اپنے ماہرین قانون سے بھی مشورہ کر رہے ہیں تاکہ الیکشن کمیشن کی طرف رجوع کیا جا سکے اور براہ راست ان کے سامنے اپنے تحفظات پیش کیے جا سکیں تاکہ اس سے آگے پھر ہم مزید قانونی کارروائی کرنے کی پوزیشن میں رہیں۔ تو اس لحاظ سے ہم اپنے آئینی اور قانونی ماہرین سے بھی مشورہ کریں گے، ان کے مشورے سے پھر ہم مزید آگے بڑھنا ہے۔ فوری طور پر اس سے وابستہ ایک اہم مسئلے پر کچھ بات کرنا بالکل ناگزیر ہے کہ تحریک لبیک ان کے کارکن اسلام آباد کی طرف آ رہے ہیں، قطع نظر اس کے کہ ان کا مطالبہ صحیح ہے یا غلط، لیکن ان کا جو بھی مطالبہ ہو اس کے لیے احتجاج کرنا ان کا جمہوری حق ہے، ان کا قانونی حق ہے۔ پہلے بھی لاہور میں ان کو جو تشدد کیا گیا اور انسانی حقوق پامال ہوئے ہیں اس میں، اور اب دوبارہ جب وہ اسلام آباد کی طرف مارچ کر رہے ہیں تو ان پر لاہور میں تشدد کیا گیا، ابھی راستے میں ہیں وہ، انہوں نے دوبارہ اگلے مرحلے کا آغاز کیا ہے۔ تو انتہائی ظالمانہ انداز کے ساتھ
उन पर तशद्दुद किया गया है। कोई लाहौर के वाक़े में तो 10 से 12 तक कहा जाता है कि शहीद भी हो चुके हैं उनके, और अब दोबारा जो आज वाक़या हुआ है उसमें भी काफ़ी लोग ज़ख्मी हैं। ये कौन सा अखलाकी रवैया है कि ख़ुद इमरान खान और उसकी पीटीआई तो 126 दिन का धरना डी चौक पर देते रहे, और अब अगर ये लोग आते हैं मुजाहरा करते हैं तो उन पर तशद्दुद किया जा रहा है। किस बुनियाद पर आखिर? और कानून की नज़र में ये फ़र्क, इतना बड़ा फ़र्क क्यों? और फिर अजीब बात यह है कि जब नवाज शरीफ के खिलाफ इनका मुजाहरा था तो वो ठीक था, लेकिन इमरान खान के खिलाफ मुजाहरा जो है वो बिल्कुल गलत है और वो कानून को हाथ में लेने वाली बात है। तो इस लिहाज से हम हुकूमत के इन ज़ालिमाना हथकंडों की मजम्मत करते हैं और मुतालबा करते हैं कि उनको अपने एहतजाज का हक़ दिया जाए और मामलात को कानून के दायरे में शाइस्तगी के साथ हल किया जाए। सिर्फ ये नहीं कि वो चूँकि एक मजहबी लोग हैं तो मजहबी लोगों को आप निशाना बनाएं और दुनिया के सामने दिखाएं कि ये लोग तो इंतहा पसंद हैं। कोई इंतहा पसंद नहीं, एक मुतालबा है उनका और उसके हक़ में वो मुजाहरा कर रहे हैं, और इसका हक़ जमहूरी माहौल में हर पार्टी को हुआ करता है। मौलाना साहब ये फरमाएं कि बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से 2-4 दिन पहले आपकी खबर से भी हमने गुफ्तगू सुनी, बाकी जमातों से भी आपने रब्ता किया, क्या बाकी जमातें भी आपके इस मौक़िफ़ की तरफ आ रही हैं कि बल्दियाती इंतखाबात जो हैं उनमें हिस्सा ना लिया जाए, क्योंकि ये जिनके ज़ाय में हिस्सा लेना वही गलत है? बाइकाट वो हमारे ज़ेर गौर है, हम बाइकाट करेंगे बिलाखिर, और कोई रास्ता अगर न हुआ तो पहले हम ये कहना चाहते हैं कि ये इंतखाबात मनसूख कर दिए जाएँ। हम कानूनी रास्ते से भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने रखने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर वो बिलफर्ज़ हम पर इम्पोज़ करना चाहते हैं और एक जाली हुकूमत की छतरी के नीचे, तो फिर ये शायद हमारे लिए काबिल कबूल। मौलाना ये बताएं कि बलूचिस्तान के हवाले से कल आपका फैसला आया था, जारी हुआ था कि हुकूमत में शामिल नहीं होंगे, लेकिन अपोजिशन को क़यादत मिलती है तो फिर पीटीएम जमातों से मुशावरत करेंगे। उसका मतलब है वज़ारत आला, मतलब अगर अपोजिशन को मिलती है तो अपोजिशन को वज़ारत आला के हवाले से भी क्लियर करें, और दूसरा अगर इस वज़ीर आला को वोट देंगे या नहीं देंगे। हुकूमत में शामिल होना अलग बात है, वोट देना वज़ीर आला को अलग इशू है। ये बातें जो हैं, जो जितना मैं फैसले में लिख चुका हूँ अब तक तो उतना ही है, और फिर जितना जितना मामलात आगे बढ़ते जाएंगे आपको बताते जाएंगे। मौलाना साहब ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सख्ती से निपटा जाए और इनसे रास्ते क्लियर कराए जाएं और किसी भी सूरत टीएलपी को जेहलम जो दरिया है उसको क्रॉस ना करने दिया जाए, रेंजर्स तैनात कर दी गई है। तो क्या इस तरह मुल्क में जो पुरअमन एहतजाज करने आ रहे हैं, अभी तक उनकी जानिब से किसी किस्म का कोई जो सरकारी इमलाक है उनको नुकसान नहीं पहुँचाया गया? अगर वो इतना जायज़ नाजायज़ को देखते हैं तो ख़ुद एतराफ़ कर ले कि मैं ख़ुद एक नाजायज़ हुक्मरान हूँ और मुझे रास्ते से हट जाना चाहिए। तो हम तो उसको रास्ते से हटाने के लिए मैदान अमल में हैं, और जब हमारा मुतालबा ही एक है कि आम इंतखाबात कराए जाएं, तो फिर आम इंतखाबात के बाद हम कोई बल्दियाती इलेक्शन कबूल नहीं कर सकते। और जाली हुक्मरान जो है उनकी यही कि न मुल्क को मईशत दे सके, न आम आदमी को रोज़गार मुहैया कर सके, और पता नहीं 50 लाख घरों का उसने ऐलान किया था, वो 50 लाख घर कहाँ हैं? वो 1 करोड़ नौकरियों की बात की थी, वो किधर हैं? वो 300 डेमों की बात की थी, वो किधर हैं? पूरा मुल्क गरकाब हो गया है और ज़मीन पर बैठ गया है मुल्क की मईशत, और अब भी ये लोगों से कहते हैं कि इनको मत आना दो इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है कि यहाँ नाजायज़ तौर पर तुम बतौर हुक्मरान बैठे रहोगे और कोई पाकिस्तानी शहरी यहाँ आकर अपने एहतजाज नोट नहीं करा सकते। मौलाना ये बताइएगा कि आपने जो बलूचिस्तान के हवाले से बात की, ज़ाहिर है आपकी बातचीत सबसे चल रही है, आपके वहाँ इत्तेहादी भी हैं, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो भी फैसला करेंगे आप सारे इत्तेहादी जो हैं वो मिलकर करेंगे या अलग अलग फैसला? यही तय हुआ है कि जो भी अगला फैसला होगा, यानी एक फैसला तो तय है कि हमने इन लोगों के साथ हुकूमत नहीं बनानी।
हम हुकूमत पीटीआई के साथ या बाप के साथ? बाप के साथ। पीटीआई तो बाद में अगर अंदर आएगी तो और मामला खराब करेगी। महंगाई है, शिद्दत तक पहुंच चुकी है, लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, हर चीज 2 गुना 4 गुना महंगी हो चुकी है। इसके ऊपर जो है हुकूमत के हवाले से आप क्या समझते हैं कि वो कहते हैं कि मईशत बड़ी अच्छी जा रही है। दूसरा ये है कि आपने फैसलाबाद में भी पीडीएम के जलसे में तकरीर की थी वज़ीर आज़म के तोपों के हवाले से, और दूसरी जगह पर भी आपने बात की है, लेकिन इशू ये है कि जिस साथी ने इन तोपों की तफसील हुकूमत से मांगी थी और हुकूमत उसके खिलाफ हाई कोर्ट में गई, उसको हिरासत में की जा रही है, उसके घर में बंधे जा रहे हैं और निगरानी हो रही है मुसलसल डेथ मूवमेंट की। तो इस हवाले से आप क्या समझते हैं कि क्या वज़ीर आज़म से तोपों की तफसील मांगना एक जुर्म है? और ये साहबी खुद यही है। तो सही। नहीं, पहले जवाब इसको क्लियर होने दें। तो आपके सवाल का पहला हिस्सा क्या था? महंगाई का तो ज़ाहिर है महंगाई तो एक आप जानते हैं कि इस वक्त पीडीएम जो है पूरे मुल्क में आवाम की शराकत के साथ सड़कों पे है। महंगाई के ख़िलाफ़ पुरज़ोर एहतजाज मुल्क के अंदर हो रहा है और रोज़मर्रा के हिसाब से आप देख रहे होंगे कि मुल्क के दूर दराज इलाक़ों में रोज़ाना के हिसाब से मुजाहरे हो रहे हैं और तसलसल के साथ हो रहे हैं, और इस पर ये आवाम का हक़ है, क्योंकि मुल्क में रहना है तो 2 चीज़ें मुल्क को देनी होंगी, एक अमन और एक रोज़गार। जो हुकूमत अमन भी न दे सके और इस तरह लोगों को मारे जिस तरह के इस वक्त मुजाहिरीन को मारा जा रहा है और मईशत भी बिल्कुल तबाह व बर्बाद कर दे, फिर ऐसे लोगों को हुकूमत करने का कोई हक़ हासिल नहीं है जी। तो इस एतबार से जिन सहाफ़ियों को धमकाया जा रहा है, मेरे ख़्याल में इस तरह ये सब लोगों को चोर कहते हैं, चोर चोर, और ख़ुद इतनी घटिया चोरियां करते हैं कि जिसके बाद मेरे ख़्याल में उनको अगर हया है तो पब्लिक में आए, फिर अपनी वजाहत पेश करें। ये क्या मतलब कि सहाफ़ियों के घरों में जाएं, तुमने ये बात क्यों लीक की है, क्यों आपने इसको पब्लिक किया है, और फिर उनको डराएं, उनको धमकाएं। इस तरीके से तो बजाय इसके कि आप दूसरों पे दबाव डालें। इस्लामाबाद में सरबराह पीरीए मौलाना फजलुर रहमान न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।